Welcome, students. Today, in the this session, we start the chapter number third, and the name of this chapter is event handling. So, the syllabus for this the event handling in this the that is the delegation event model. First point. Then in this event source and event listener, and then all the event classes. Then next point is adapter classes, then inner classes, and last one is the event listener interface. So this chapter is having the 8 hours and total 10 marks for your the syllabus. So why we start the chapter number third? Um, because in chapter number 1 there is the programming of the event handling. So you better way to understand what is the event and what is the event handling. So we turn to chapter number third. In this we cover the action listener and atom listener, and then we turn to the chapter number second. So we start our the session. Okay. The first of all, you can be understand what is meant by the event handling. The applet. What is applet? The applet are the event driven programs. The event handling is at the core of our the successful applet programming. अब most of the event our applet will respond are generated by the user. So these events are passed to our the applet in variety of the ways with the specific method depend on the actual event. So there are number of several types of the events. The most common handled event are those generated by the mouse, keyboard, and various controls such as the push button. Okay, so I think all of you understand the what is the event. Event means most of the times मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा हिंदी में आपको बोलता हूँ कि यूज़र if respond to the program, then there are the number of the ways. जैसे कि उसके पास में क्या अवेलेबल है, माउस है, उसके बाद में उसके अवेलेबल क्या है, कीबोर्ड, और थोड़ा सा जो भी हम स्क्रीन पे कंट्रोल देखते हैं, जैसे कि हम हैंड से कोई भी टच स्क्रीन को बटन को क्लिक करते हैं, या कुछ कीबोर्ड से या माउस से कोई बटन को पुश करते हैं, तो देन व्हाट हैपन्स, दे कैन बी अ create the event or the task, and that task will be handled by the this event handler. उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट हैंडलिंग. ये पार्ट थोड़ा सा इजियर है when you become the understand the clear concept of this event handling. So इवेंट हैंडलिंग, इवेंट जो है उसमें जो हम पैकेज यूज़ करने वाले हैं, द नेम ऑफ दिस पैकेज इज जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट पैकेज. ये हमारा बेसिक पैकेज है, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट पैकेज. इस ये इसमें हमारे ऑल द क्लासेस, ऑल द इंटरफेसेस दैट इज अवेलेबल फॉर दिस और द इवेंट हैंडलिंग.
So we turn to the next slide. बेसिकली इवेंट हैंडलिंग, ये जो कंसेप्ट है, हम उसको इवेंट हैंडलर भी बोलते हैं. सो इवेंट हैंडलिंग इज द मैकेनिज्म that controls the event and decide what happens in at event, and then according to that the there will be a code. उसको हम क्या बोलते हैं, there this mechanism have the code which known as the event handling, and that is executed when an event occurs. एक सिंपल लाइन में लिखा है कुछ इसमें, जैसे कि हम माउस को क्लिक करते या विंडो को क्लोज करते, तो विंडो को क्लोज करने के बाद में जो प्रोग्राम है उसको क्लिक होता है कि कुछ एक्शन हुआ है, तो उस एक्शन के ऊपर उसी प्रोग्राम में एक अलग सा कोड लिखा जाता है, और वो कोड तुम्हारा जो भी इवेंट ऑकर हुआ है उसको हैंडल करता है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द इवेंट डेलीगेशन. अब ये जावा यूज द डेलीगेशन इवेंट मॉडल, उसको इवेंट हैंडलिंग के लिए बनाया गया है, और दे कैन बी यूज द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म एंड हैंडल्स द इवेंट. अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में हम आगे भी देखने वाले हैं कि जैसे कि हम आज सिर्फ एक ही कंट्रोल पे फोकस करेंगे, और वो जो कंट्रोल है बटन और एटम. ओके, ये जो हमको ज़्यादा लगने वाले हैं, तो जैसे कि बटन जो कंट्रोल है, बटन, हम बटन में क्या है, हमारा सिर्फ बटन हम दिखाई देते हैं, और बटन को पुश करने के बाद में एक इवेंट जनरेट होता है, एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड एज द एक्शन इवेंट. जैसे कि हम चॉइस बटन है, लिस्ट बटन है, चेक बॉक्स बटन है, उसको हम जब क्लिक करने वाले हैं या उसके ऊपर कुछ एक्शन करने वाले हैं, तो उसके बाद में जो इवेंट जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम इवेंट. तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा कंपोनेंट है और उसके ऊपर कौन सा इवेंट है. जिसको समझ में आता है या जो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि कौन से कंपोनेंट पे कौन सा इवेंट जनरेट होने वाला है, ये उसको एक बार मैचिंग समझ में आ गया, तो दे कैन बी इजीली क्रिएट दिस इवेंट हैंडलिंग कोडिंग. सो हम थोड़ा सा बटन, टेक्स्ट फील्ड, लिस्ट, मेनू, उसको हम मैक्सिमम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, एक्शन इवेंट, फ्रेम के लिए विंडो इवेंट, चेक बॉक्स चॉइस लिस्ट के लिए एटम इवेंट, स्क्रॉल बार के लिए एडजस्टमेंट इवेंट, माउस के लिए माउस इवेंट, और कीबोर्ड के लिए की इवेंट. इतना ही आप अभी देखिए, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट है, वो उसके ऊपर बहुत सारे इवेंट भी है, बट फॉर योर सिलेबस you have to only cover 6. Okay, so what is mean by the exactly event delegation event model. अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल लाइन लिखा है कि it is a very standard process, standard mechanism which have to generate and process the event. ये जनरेट भी करता है और प्रोसेस भी करता है. यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक लाइन लिखा है कि दे एडवांटेजेस ऑफ दिस डिज़ाइन इज दैट द एप्लीकेशन लॉजिक that can be process the event clearly separated from the user interface logic. अब ये जो कोड है या इवेंट डेलीगेशन मॉडल का जो कोड है वो एक अलग से लिखा जाता है. ओके, a user interface element is able to delegate the process of an event to a
सेपरेट पीस ऑफ अ कोड, एक आप समझ में आना चाहिए कि ये जो कोड है, इट इज अ कंप्लीटली राइट आउटसाइड ऑफ आवर द मेन प्रोग्राम। ये जो मेन प्रोग्राम का या हमारा ये जो लॉजिक है, इट इज अ कंप्लीटली अ सेपरेटेड फ्रॉम आवर द मेन इंटरफेस लॉजिक। ओके, तो ये आपको एक बार ध्यान में आना चाहिए कि ये अलग सा कोड लिखना है और उस कोड को हमारे मेन प्रोग्राम के साथ हमको उसका इंटरफेस या उसकी कोडिंग लिखना है। ओके, तो यहाँ पे मेरे जो यहाँ पे इट इज़ अ वेरी, इट्स कंसेप्ट इज क्वाइट सिंपल, थोड़ा सा सिंपल भी है। अ सोर्स जनरेट एन इवेंट, यहाँ पे क्या है, पहला सोर्स आपको एक बार समझ में आना चाहिए। सोर्स बोले तो क्या है, जैसे कि हम कंपोनेंट बोलते हैं, बटन। तो सोर्स जनरेट एन इवेंट एंड सेंड इट टू अ वन और मोर लिसनर, यहाँ पे एक लिसनर नहीं है, बहुत सारे लिसनर भी हम यूज कर सकते हैं। इन दिस स्कीम listener simply wait until it received an email। लिसनर तो तैयारी होता है, जैसे कि उसको इवेंट मिलता है, अकॉर्डिंग टू दैट लिसनर प्रोसेस एन इवेंट एंड देन रिटर्न्स। अब हमारा ब्रेन है, समझो हमारे ब्रेन को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि वॉक करने, तो हमारे पैर तो रेडी रहते ही, देन विल विल वॉक। देन अगर हमारे वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, कौन सा भी मेथड हमारे जैसे कि ब्रेन को मिलता है थ्रू हार्ट, देन ब्रेन विल बी एक्टिव दैट पर्टिकुलर मेथड। वही यहाँ पे सिंपल लॉजिक है। लिसनर रेडी है, जैसे ही उसको इवेंट मिलेगा या जैसे भी उसको इवेंट क्लिक करेगा कि ये इवेंट एक्टिव करना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट listener can be a process that event and then respond. It's a very simple one. So I think you better way to understand the event delegation model। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूँ आपको। अब ये इवेंट डेलीगेशन मॉडल में बेसिक दो ही इम्पॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट वन इज द इवेंट सोर्स और दूसरा इवेंट लिसनर। अब जैसे कि पहली स्टेप यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सोर्स रजिस्टर्ड द लिसनर। पहला उसको क्या करना है, सोर्स को रजिस्टर करना, और फिर रजिस्टर करने के बाद में उसका लिसनर में कोडिंग भी लिखना है। और फिर दूसरा स्टेप क्या है, उसको रजिस्टर करने के बाद में फिर उसको फायर करना है। फायर बोले तो उसको उसको एक्टिव करना है, या उसको जैसे कि बटन को पुश करने वाले तो उसको वो एक्टिव हो जाएगा, तो वो फिर लिसनर को एक्टिवेट कर देगा। जैसे लिसनर एक्टिवेट होता है, देन इट रिएक्ट द इवेंट। यही है, पहले सोर्स, लिसनर, देन यू कैन बी रजिस्टर्ड फर्स्ट द लिसनर, देन फायर एन इवेंट, एंड थर्ड इज रिएक्ट द इवेंट। ये तीन स्टेप है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अब यहाँ पे इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग आपको करना है, तो इसमें आपका जो इंटरफेस है पहले उसको इम्प्लीमेंट करना है, और दूसरा जो भी आपका सोर्स है उसको रजिस्टर करना है विद द लिसनर, एंड देन यू कैन बी टाइप द स्पेसिफिक कोड ऑफ आवर द लिसनर। ओके, तो ये थोड़ा सा कोडिंग पार्ट हम बाद में देखेंगे, क्योंकि आप पहले सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आप जान लीजिए। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, अब मैं और एक बार आपको थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, इवेंट क्या है। इवेंट इज एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब द स्टेट चेंज इन द इवेंट। स्टेट
स्टेट उसका चेंज होता है, कि जैसे कि वो डिसेबल है और इनेबल। पहले वो डिसेबल रहता है, अगर यूज़र उसको कुछ एक्शन करता है तो वो दैट कैन बी इनेबल। अब यहाँ पे मैंने कि बोला है कि a person is interacting with the element in the GUI interface, then some of the activities that can be called with this event। अब पर्सन या यूज़र क्या क्या कर सकता है, बेसिक बटन को पुश कर सकता है और कैरेक्टर एंटर कर सकता है कीबोर्ड थ्रू। उसके बाद में एटम लिस्ट का सेलेक्ट कर सकता है, माउस के ऊपर कौन से भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यूज़र कुछ भी इवेंट कर सकता है। यूज़र को हम बोल नहीं सकते कि यही इवेंट पर्टिकुलर आपने करना चाहिए। यूज़र कि यूज़र कौन सा यूज़र उसके अकॉर्डिंग टू, जैसे उसके पास माउस है, कीबोर्ड है, तो वो एक्टिविटी करने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन बी क्रिएट द कोड एंड प्रोसेस दिस कोड। सो इवेंट हम देखिए है कि इवेंट में एग्जांपल लेके कि event is generated when timer expires, a counter exceed a value, software and hardware failure occurs, an operation is completed। तो टाइमर के रिलेटेड भी इवेंट जनरेट हो सकता है ऑटोमेटिकली थ्रू द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो ये हम देखेंगे बात इवेंट सोर्स। जैसे कि मैंने बोला है कि बटन एक एग्जांपल है, उसके बाद में चेक बॉक्स है। So these are the event source। Event source is an also the object। It generates an event। This called as the internal state of the object change in some way। The source may generate the more than one type of the event। एक source बहुत सारे event को support कर सकता है। अब source must be registered the listener in order for the listener to receive the notification about the specific type of the event। अब ये पहली स्टेप्स है कि इवेंट को हमको रजिस्टर करना है। अब हम इवेंट को रजिस्टर करने के लिए हमारे पास बेसिक जो स्टेप है, पहला जो स्टेप्स है वो कौन सा है, सिंटैक्स क्या है, void add type listener in bracket type listener el। वेरी सिंपल स्टेप। तो उसको हमको ऐड करना है, तो ऐड अगर की लिसनर करना है तो ऐड की लिसनर इन ब्रैकेट टाइप लिसनर el क्या है, इट इज द रेफरेंस ऑफ द इवेंट लिसनर। ओके, so another example, if you register the mouse motion listener, you can be add mouse motion listener in bracket this or type listener el। तो हम मैक्सिमम कौन सा यूज करने वाले हैं, add type listener in bracket this। It is the very simple add type listener in bracket this। जैसे कि हम बटन यूज करते, बटन का ऑब्जेक्ट यूज किया है हमने बी, तो बी डॉट एड एक्शन लिसनर इन ब्रैकेट दिस। तो ये हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने इवेंट जनरेट किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल द रजिस्टर इवेंट एड नोटिफाइड एंड रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ द इवेंट ऑब्जेक्ट। तो उस स्टेप को हम मल्टीकास्टिंग ऑफ द इवेंट भी बोल सकते हैं, कि बहुत सारे हम लिसनर को क्रिएट किए तो मल्टीकास्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने तुम्हारा जो इवेंट है उसको रिमूव करना है, तो उसका एक जनरल फॉर्म है, जैसे कि पब्लिक वाइड रिमूव टाइप लिसनर इन ब्रैकेट टाइप लिसनर el। सिंपल है, जैसे ऐड किया है वैसे रिमूव करना है। तो रिमूव द कीबोर्ड लिसनर वी कॉल द रिमूव की लिसनर इन ब्रैकेट दिस। तो यू कैन बी अ रिमूव द लिसनर प्रोवाइड बाय द सोर्स। ओके, तो रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे मेथड यूज करने वाले हैं रिमूव टाइप लिसनर, जैसे टाइप लिसनर की लिसनर है। ओके, तो ये थोड़ा सा, अब यहाँ पे हम एक इवेंट लिसनर क्या है, हमारा पहले क्या होगा, दो है हमारे सोर्स, पहला है सोर्स और दूसरा है लिसनर।
तो सोर्स के बारे में हमने देखा है कि सोर्स क्या है और हाउ टू रजिस्टर दिस सोर्स। वैसे ही लिसनर है, तो लिसनर इज एन ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है। और लिसनर दैट इज notified when the event is occurred. There are the two major requirements. The first is what? It have been registered with one or more sources and to receive the notification about the specific type of the event. यहाँ पे क्या करना है, पहले हमको रजिस्टर करना है सोर्स को, एक करो या बहुत सारे करो, और उसका जो भी नोटिफिकेशन है वो लिसनर को मिलना चाहिए। ओके, तो उसका जो कोड है वो भी उसको डिफाइन करना है। तो पहले रजिस्टर करो और उसका जो कोडिंग है वो क्रिएट करो, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, यू कैन बी इम्प्लीमेंट द मेथड टू रिसीव एंड प्रोसेस दीज नोटिफिकेशन। आपको जो भी इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करना है। The method that receive and process the event are defined in the set of the interface found in the java.awt.event। सिंपल है, पहला सोर्स को रजिस्टर कीजिए और उसका कोडिंग लिखिए। दूसरा स्टेप, आपको जो भी लिसनर है उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप एक एग्जांपल लिखा है, माउस मोशन लिसनर इंटरफेस, और उसमें कौन कौन से मेथड है, दो मेथड है, माउस ड्रैग और माउस मूव। तो आपके ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी मेथड है आप उसके रिलेटेड कोडिंग लिखिए, रजिस्टर कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड एनी ऑफ सो इट्स अ वेरी सिंपल वन। पहले रजिस्ट्रेशन, फिर कोडिंग एंड देन इम्प्लीमेंट। ओके, देन इट इज सब जो हम यहाँ पे मैंने एक इवेंट क्लास है एक्शन इवेंट, तो उसका लिसनर कौन सा है, एक्शन लिसनर। एटम इवेंट लिसनर कौन सा है, एटम लिसनर। की इवेंट लिसनर कौन सा है, की लिसनर। माउस इवेंट माउस लिसनर। टेक्स्ट इवेंट टेक्स्ट लिसनर। एडजस्टमेंट इवेंट एडजस्टमेंट लिसनर। विंडो इवेंट विंडो लिसनर। सो दीज आर द इवेंट क्लासेस। हम इवेंट क्लासेस इसके बाद में देखने वाले हैं, क्योंकि सब डिपेंडेंसी है। बटन के ऊपर कौन सा लिसनर यूज करना है हमको, एक्शन लिसनर। और एक्शन लिसनर किसको सपोर्ट करता है, कौन से क्लास को, एक्शन इवेंट को। सो एक्शन मेथड एक्शन लिसनर इज, इसमें हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, एक्शन परफॉर्म्ड, तो वो हम आगे देखेंगे। तो इवेंट क्लासेस, अब इवेंट क्लासेस मेन हमने क्या देखा है, पहले सोर्स और फिर लिसनर। अब ये यहाँ तक हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल हो गया है, पर इसके बाद में जो मेन लिसनर और क्लासेस, दैट इज द बिल्ड वन, और बटन हम क्रिएट करने वाले हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारा है, हम यूज़र और प्रोग्रामर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला है। तो जो भी सोर्स है उसको हैंडल करने के लिए जावा ने इवेंट क्लासेस एक अनदर कोडिंग क्रिएट की। तो क्लासेस दैट रिप्रेजेंट द इवेंट आर द कोर ऑफ द जावा इवेंट हैंडलिंग। ये क्लासेस इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो जो मेन क्लास है दैट इज द इवेंट ऑब्जेक्ट। एट आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है पहले कि द इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास इज अवेलेबल इन विच पैकेज। तो मैक्सिमम बच्चे क्या सेलेक्ट करते हैं, जावा डॉट awt.event, और ये गलत है। सही आंसर है जावा डॉट util। एट द रूट द जावा क्लास hierarchy event object is available in which package, that is the java dot util। और ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है इट इज़ द सुपर क्लास सबसा। तो तो event object it contain the two method, one is the get source and second is toString। तो get source method it can be returns the source of the event,
और उसका जो सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट गेट सोर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड दिस गेट सोर्स, एंड आल्सो टू स्ट्रिंग, इट कैन बी रिटर्न द स्ट्रिंग इक्विवेलेंट टू द इवेंट। सो ये गेट सोर्स और टू स्ट्रिंग, ये दो मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमने देखा है कि इन ए डब्ल्यू टी इवेंट देयर इज द java dot awt package is the subclass of the event object. So uh, in a superclass of the all AWT events used by the event delegation model. तो event object क्या है? Event object is the super class of the all the events. और AWT event क्या है? It is the super class of the all AWT events that handled by the delegation event model। ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको कि इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है और AWT इवेंट क्या है। तो इवेंट ऑब्जेक्ट इज द सुपर क्लास ऑफ द ऑल द इवेंट्स, और AWT इवेंट क्या है? इट इज द सुपर क्लास ऑफ द ऑल AWT इवेंट्स। तो दैट इज हैंडल बाय द डेलीगेशन इवेंट मॉडल। ये थोड़ा सा आपको जब एक मैं फिगर दिखाऊंगा आगे तो उसमें समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, समझ में आने के लिए आप यहाँ पे देखिए AWT इवेंट इज द सुपर क्लास ऑफ द ऑल द इवेंट्स एंड इवेंट ऑब्जेक्ट इज द सुपर क्लास ऑफ द ऑल द इवेंट्स। सो यहाँ पे देखिए, पहले जो है AWT इवेंट, उसका जो सब क्लास है एक्शन इवेंट, उसका सब क्लास कोई नहीं है। जैसे कंपोनेंट इवेंट है, उसका सब क्लास है इनपुट इवेंट, और इनपुट इवेंट का सब क्लास है माउस इवेंट, और उसका सब क्लास है की इवेंट। यही ज़्यादा है, सबसे जो कोर है माउस इवेंट, इनपुट इवेंट, कंपोनेंट इवेंट और AWT इवेंट। और AWT इवेंट किसको सपोर्ट करता है? इवेंट ऑब्जेक्ट। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल वन। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है सिंपल। सोर्स क्या है? A click on the source button raised to an event which is the object of the action event, and the source button will be called by the method add action listener to register this class which is listen and respond by the to the action event। यहाँ पे बटन ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, उसको सपोर्ट एक्शन इवेंट करता है, उसको रजिस्टर करना है तो ऐड एक्शन लिसनर धिस ये हमको करना है। तो ये जो है डिपेंडेंसी है बटन के ऊपर एक्शन इवेंट क्लास, और एक्शन इवेंट को हैंडल करने के लिए लिसनर को हमको पहले उसके बारे में बटन को रजिस्टर करना है। ये कोडिंग है। यहाँ पे जो स्टेप है रजिस्टर्ड, लिसन एंड रिस्पॉन्ड, यही तीन वर्ड है। फर्स्ट रजिस्टर कीजिए, फिर लिसन कीजिए, सुनिए, और फिर उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। यही तीन स्टेप के ऊपर ये डेलीगेशन इवेंट मॉडल वर्क करता है। तो आई थिंक ये फिगर इम्पॉर्टेंट है। इवेंट ऑब्जेक्ट का जो बेसिक java.util में है, ये हमने पहले देखा है कि इवेंट ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल इन द java.util। उसको दो मेथड है, गेट सोर्स टू स्ट्रिंग, और उसके बाद में दूसरा है AWT इवेंट। ये जो है उसका जो पैकेज है java.awt.event। तो ये आप कंफ्यूज मत होइए कि ये दोनों अलग पैकेजेस है, और उसके रिलेटेड आज हमने इवेंट हैंडलिंग के बारे में थोड़ा बेसिक देखा है, और हम कोडिंग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, जैसे कि एक्शन इवेंट और एक्शन लिसनर। सो टुडे वी स्टॉप हियर।